So hello everyone, we will start our chapter further, that is plant kingdom. So we were able to complete हमने कर लिया था इंट्रोडक्शन भी कर लिया था, एलए भी कर लिया था और बायोफाइटर कुछ रह चुका था, कुछ वी विल डू इन दिस क्लास. सो लेट अस मूव अहेड. तो बायोफाइटर वी विल do today liverworts and we will do today mosses and we will start Caryophyte also. So let's move ahead without any further delay. So let us talk about importance of bryophytes. So what are the importance of bryophytes? So some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and etc. मतलब जो कुछ mosses होती है जो provide करती है food किसके लिए? For herbaceous mammals और birds के लिए. Species of Sphagnum, that is a moss, वो provide करता है क्या? Peat. It is used as fuel. वो fuel की तरह use होता है. It has a water holding capacity, so that used for as packing material for transportation of material, living material. So what is the this peat? It is used as a fuel. सबसे पहले तो fuel की तरह use होता है and इसके पास इसकी water holding capacity बहुत अच्छी होती है. So ये packing material की तरह use होता है. Transportation of living material के packing के लिए it's play a important role. So this is the importance of bryophytes. Let's move ahead. Talking about third point. The ecological importance because of their role in plant succession on bare rock soil. Mosses along with lichen decompose rock making substrate suitable for the growth of higher plants. So what happens is when it play ecological importance. Why? Because it's have a important role in plant succession. What do you mean by plant succession? We'll cover this in your ecology unit. By the way, ये तुम्हारे syllabus से delete है, तुम्हें ज़्यादा ध्यान इस पे देना नहीं है. But if you want, तो we'll be having looked in class 12th in ecology unit. Now you don't have to worry about this much. कोई नहीं पूछ रहा what is plant succession. We बस remember ये term याद रखना, plant succession कुछ होता है. Now mosses जो है वो decompose करती है lichen के साथ, वो rocks को decompose करती है. फिर जब रॉक्स जो है जो आपकी डिकम्पोज हो जाती है तो व्हाट हैपेंस इज वो सॉइल बना देती है विच इज यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज अ प्राइमरी सक्सेशन ओनली एक्चुअली बट about this we will study in ecology in detail. Now since most form a dense mat on soil they prevent soil erosion. This you can see in this diagram. सोइल ने मोसेस ने टेंस मैट बना रखे सॉइल के ऊपर सो इट विल हैव रोल इन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन. नेक्स्ट नाउ वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. इसमें लिवरवर्ट्स वी विल स्टडी एंड मोसेस वी विल स्टडी. लेट अस मूव starting with liverworts. Now liverworts they grow usually in moist shady habitats such as bank of stream, marshy ground, damp soil, bark of trees deep in the wood. Now this is about the habitat. It's plant family guys. So where it will be find moist place में shady habitat में bank of stream के banks पे मिलेगी, marshy ground दलदल मिट्टी, damp soil गीली मिट्टी, bark of trees की bark में and deep in the wood में भी it will find. Now प्लांट बॉडी इज थैलोइड होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होती है एंड इट इज यूज्ड एग्जांपल इज मार्टिनचिया. नाउ थैलस इज डोर्सोवेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड होता है टू द ये सबस्ट्रेट था बट इट इज नॉट सबस्ट्रेट, इट इज सबस्ट्रेटम. व्हाट इज सबस्ट्रेटम? सबस्ट्रेटम इज ये तुम्हारा एक नेटवर्क होता है जो प्लांट का मतलब ब्रायोफाइट का जो उसे सॉइल से अटैच करने में मदद करता है, दैट इज सबस्ट्रेटम. सो ये क्लोजली ये डोर्सोवेंट्रली होते हैं. थैलस जो है डोर्सोवेंट्रली होती है फ्लैट और ये ना क्लोजली अप्रेस्ड होती है किसके साथ? सबस्ट्रेटम के साथ. बहुत ही अप्रेस्ड होती है, दबी सी होती है ना. नाउ leafy members have teeny leaf-like appendages, 2 rows on stem-like structure. जैसे leafy member होता है उसके पास छोटे छोटे leaf-like appendages होते हैं जो 2 rows में present होते हैं किसके ऊपर? Stem-like structure. Again बता देता रीजन stem-like structure क्यों बोल रहे हैं, because इनके पास vestibular bundle is not there, so that's why we will use stem-like, root-like and leaf-like structure. Exactly leaf नहीं बोलेंगे, stem नहीं बोलेंगे, root नहीं बोलेंगे, but from the pteridophytes we will be able to call them exactly as leaf, stem and root. क्यों? उनके पास vestibular bundle will be present, which we will study as a first point in the pteridophyte only. Let's move ahead. Asexual reproduction. So
by fragmentation of thalli or by the formation of Gma crop that is similar is Gma. तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, फ्रेगमेंटेशन से कोई थैलाई थैलाई जो थैलाई है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाए, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ जीमा कप के फॉर्मेशन से भी इफ एक जीमा कप बन जाए एंड वो जीमा कप तुम्हारा डिटैच होके एक अलग ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है. सो दिस इज अबाउट अ जीमा कप. नाउ जीमा कप आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड दैट डेवलप इन स्मॉल रेसेप्टिकल कॉल्ड जीमा कप ऑन द थैली. अब जीमे जो है ये जीमे कप के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब जीमे क्या होते हैं? ग्रीन मल्टीसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बड्स होती है जो डेवलप करती है स्मॉल रेसेप्टिकल जीमा कप के अंदर. किसके ऊपर? थैलाई के. नाउ दिस इज द characteristics of your Gma which can be asked. Now Gma are detached from the plant body and germinate to form a new individual. If Gma will detach from the plant body, then it will be able to form a new individual. So this is about Gma. Now I have a trick for remembering the characteristics of these Gma. Gma कैसे होती है? ग्रीन होती है, मल्टीसेलुलर, एसेक्सुअल वर्ड. सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी निमोनिक. कोई निमोनिक इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस वर्ड सेज all the things about the characteristics. Now ये जीमे की स्पेलिंग जीमे की स्पेलिंग इधर. नाउ जी से होता है ग्रीन. यू हैव टू रिमेम्बर जी से, जी इज फॉर ग्रीन. ठीक है, ये जो एम आ रहा है इसमें स्पेलिंग में, दैट इज यूज फॉर मल्टी सेलुलर. सही है. एंड ए भी है स्पेलिंग में, दैट इज रिप्रेजेंट योर एसेक्सुअल बर्ड्स. ये तीन फीचर गिवन थे, सो यू कैन रिमेंबर बाय दिस ट्रिक. सो इफ एनी ऑफ दिस characteristic is asked in your exam, you will be able to answer nicely. So this is the how you can remember. And ऐसे ही पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी. आई हैव गिवन सो मेनी ट्रिक्स टिल नाउ. एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा मॉर्फोलॉजी होने वाला है. सो मॉर्फोलॉजी भी इस तरीके से वी विल डू सो दैट you won't face any problem in morphology chapter. Generally people face in botany chapter में, morphology में, they think that it's a difficult chapter and they face lots of problem, but you don't have to struggle for that much because I'm with you. Now let's talk about sexual reproduction. So male and female sex organs are produced on the same thalli or different thalli. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो तुम्हारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो सेम थैलाई पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट थैलाई पे भी हो सकते हैं. नाउ रिमेंबर, जो तुम्हारा इसका स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल. तीसरा जो वो होता है लिवर वर्ट्स, वो स्पोरोफाइट और डिफरेंशिएटेड होता है कंप्लीटली फूट, सीटा एंड कैप्सूल. अब मियोसिस के बाद स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं विद इन द. सो आई हैव टोल्ड यू कि जब तुम्हें गैमीट बनाने पर जब तुम्हारा म्यूसिस होता है, सो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर योर कैप्सूल के अंदर. नाउ दीस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. आई टोल्ड यू इन द लाइफ साइकिल ओनली कि जब स्पोर्स को जर्मिनेट करते हैं तो दे फॉर्म लिविंग गैमेटोफाइट. सो दिस टोल्ड यू. लेट्स मूव अहेड. लाइफ साइकिल में वी हैव डन ऑलरेडी सारी लाइफ साइकिल रिलेटेड है. यू कैन ओपन योर लाइफ साइकिल वाला नोट्स, सो विल बी एबल टू रिलेट दिस. लेट्स मूव अहेड. नाउ नेक्स्ट इज योर मोसिस. फर्स्ट था लिवर वर्ड, सेकंड था मोस. The predominant stage of life cycle of moss is gametophyte. जो मोस है तुम्हारा वो जनरली gametophyte, वो तुम्हारा डोमिनेंट फेज जो होता है इसमें gametophyte होता है. इसकी दो स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज. फर्स्ट इज प्रोटोनिमा स्टेज एंड सेकंड इज द लीफी स्टेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल. नाउ प्रोटोनिमा डेवलप फ्रॉम द स्पोर्स. ये डायरेक्टली स्पोर्स से नहीं होता. फीचर दे रखा है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है, चिन्ह होता है, ब्रांच होता है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है. कौन सी? प्रोटोनिमा स्टेज. सेकंड वाज लीफी स्टेज. इट डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लेटरल बड्स. अब व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोटोनिमा, इस लीफी स्टेज, ये प्रोटोनिमा की तरह ही लेटरल बड्स की तरह ये प्रोटोनिमा होगी. ठीक है, प्रोटोनिमा में लेटरल बड्स थी. ठीक है, तो ये लेटरल बड्स सेकेंडरी प्रोटोनिमा की तरह है, इसी से डेवलप कर जाएगा. ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ. ये कंसिस्ट करता है, अपराइट होता है, सिलेंडर एक्सिस होता है इसका, और जो बेयर करता है स्पाइरली अरेंज्ड लीफ. लीफ जो इसमें स्पाइरली अरेंज्ड होती है. दे आर अटैच टू सोइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड. इसका जो ये जो है सोइल से अटैच होता है इसके थ्रू, मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स के थ्रू. नाउ दिस स्टेज बेयर अ सेक्स ऑर्गन. ये स्टेज वो होती है जिसमें क्या बेयर करते हैं? सेक्स ऑर्गन्स को बेयर करते हैं. लीफी स्टेज में, मोसिस केस में. नाउ टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव सेम बडिंग से हो सकता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ सेकेंडरी प्रोटोनिमा बडिंग की तरह, और फ्रेगमेंटेशन बडिंग हमने डिस्कस किया था.
नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एंथ्रीडिया आर्चिगोनियम जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं एट द एपेक्स ऑफ लीफ। जो एंथ्रीडिया एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसकी एपेक्स पे, लीफी शूट्स की एपेक्स पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो डेवलप करता है टू स्पोरोफाइट, जिसके पास क्या होता है, फूड सीटा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है जो अपना जाइगोट है वो डेवलप कर जाता है स्पोरोफाइट में, और इसके पास क्या हो जाता है, फूड सीटा कैप्सूल आ जाता है। ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट वाला। द स्पोरोफाइट ऑफ इन मोस इज मोर इलेबोरेट देन योर लिवर फर्ट्स। मतलब व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, जो तुम्हारा ये होता है स्पोरोफाइट जो होता है वो तुम्हारा ज्यादा इलेबोरेट होता है मोस्ट्रा देन योर लिवर। हाउ कैन यू रिमेंबर कि स्पोरोफाइट जो है मोसा है ना, मोसा मोसिस, मोसा मोसिस को मोसा ही से कर लो कि हमारा मोसा स्पोरोफाइट का मोसा ज्यादा इलेबोरेट होता है देन लिवरवर्ट्स। ठीक है। कैप्सूल जो कंटेन करता है स्पोर, और स्पोर जो फॉर्म करते हैं किससे, म्यूसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मोस के पास इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल। जैसे तुम लोग ये स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये सीडो इलेटर्स है, ये सीडो इलेटर्स था। ये तो एक तो सीडो इलेटर्स होते हैं, एक इलेटर्स होते हैं। यू डोंट हैव टू गो इन दैट मच डिटेल। सीडो इलेटर्स और इलेटर्स का काम होता है ये इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है इनका, स्पोर डिस्पर्सल में मदद करते हैं कौन, इलेटर्स और सीडो इलेटर्स। नाउ एक बात आई विल टेल यू this, how you will be having a trick for NEMA, protonema stage, कि it is for liverworts and for moss. How you can remember mosses के लिए we have NEMA, मतलब how can you remember कि नीमा का मोसा था। तो how, this is how you can remember if you will get confused कि liverworts में नीमा stage जो protonema stage mosses में होती है liverworts में, so that is in mosses. Why, how you can remember कि नीमा का मोसा था, नीमा was a girl and उसका मोसा था। So this is how you can remember. Now let us move. ये तुम्हारे लिए easy था, easy बनाने के लिए था। This is how you can learn this in easy way. Now ये examples है mosses के, Funaria is a moss, Phaetonum is a moss, Polytrichum is a moss. These are the mosses. Moving ahead. Now it is our next this plant kingdom का, that is pteridophyte. Earlier we have done, and we have done bryophytes. Now let's start with the pteridophyte. टेरिडोफाइट में वी हैव होस्टेल एंड फर्न्स। होस्टेल्स और फर्न्स जो है मिलते हैं स्टेल्स। अब इनकी वो ये हैबिटेट ये फाउंड करते, ये दे फाउंड इन कूल डैम्प शेडी एरियाज, सम फ्लावर्स वेल इन द सैंडी सॉइल कंडीशन। कुछ इनमें से सैंडी सॉइल कंडीशन में मिलते हैं, बाकी कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में दे आर फाउंड। Evolutionary, they are the important point. Now they are the first terrestrial plant to possess vestibular xylem and phloem. इनके पास xylem and phloem मिलता है तो वेस्कुलर बंडल होता है। तो अब नाउ दे विल बी अ प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम एंड प्रॉपर लीव्स। नाउ लेट अस मूव अहेड। दिस इज द सैलिजिनेला, ये दिस इज सैलिजिनेला, इसे संजीवनी भी कहते हैं, ये सैलिजिनेला है दोनों। एंड दिस इज फर्न, व्हाट आर दिस आर फर्न। Now in bryophyte the dominant phase is the gametophyte, but in pteridophyte the dominant phase is the sporophyte. There is a difference between them. It is differentiated into root, true stem and true. This I told you because they have well differentiated vascular. The leaves pteridophytes, leaves जो pteridophytes की small leaves they are microphyls, and जो इसमें मिलती है सेलाजिनेला में, देखो डायग्राम में छोटी छोटी लीव्स है, इन्हें बोलते हैं माइक्रोफिल्स। लार्ज लीव जो मिलती है फर्न में, दोज आर मैक्रोफाइल्स। देखो ये दीज आर मैक्रोफाइल्स एंड दीज आर माइक्रोफाइल्स। मूविंग अहेड, pteridophytes are importance, they are used for medicinal purposes. There are so many pteridophytes which are used for medicinal purposes, medicine बनाने में यूज होते हैं। and they act as binders also, so that they binds with the soil and they can prevent soil erosion. And this is they are used for the ornamental purposes. Ornamental purposes means that means they are used for the decoration purpose. So this is the importance of their pteridophytes. Talking about the reproduction, so sporophyte bear करता है sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. Sporophyte के पास they bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages, sporophyll. So sporophyte completely body है, this is complete sporophyte, complete body sporophyte है। sporophyte के पास है ये एक लीफ, this if we talk about this single leaf, ये is sporophyll
एंड स्पोरोफिल के अंदर इफ वी गो दे हैव स्पोरेंजियम एंड स्पोरेंजियम के अंदर दे हैव स्पोर्स. So this is about the reproduction of pteridophytes. So thank you so much for this wonderful session. And if you have any doubt related to the chapter, you can post in the comment section. I will be able